तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने 2,30,825 करोड़ का असेंबली में बजट पेश किया। अकलियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें अकलियतों के लिए कर्ज है, शादी मुबारक स्कीम, अकलियतों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स, जामे निजामिया में ऑडिटोरियम की तामीर, कोकापेट में इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए अराजी व दीगर शामिल हैं। ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలలో ఎస్సీలతో సరిసమానంగా మైనార్టీలకు ప్రయోజనాలు వర్తింపజేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విద్యారంగంలో మైనార్టీలు ముందడుగు వేయడం కోసం ప్రత్యేకంగా మైనార్టీ గురుకులాలను ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యంగా మైనార్టీ బాలికలు బాగా చదువుకోవడం ద్వారా తమ కాళ్లపై తాము నిలబడాలని 50% గురుకులాలను మైనార్టీ బాలికల కోసమే ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి కేవలం 12 మైనార్టీ గురుకులాలు అరకొర వసతులతో నడుస్తూ ఉండేవి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మైనార్టీ గురుకులాల సంఖ్యను 204కు పెంచి అన్ని వసతులు కల్పించింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో గురుకులాల నిర్వహణకు 561 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాం. ఇందులో 1,00,000 మంది మైనార్టీ విద్యార్థులు మంచి చదువులు చదువుకుంటున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన విద్యా సంస్థ జామే నిజామియాలో 15 కోట్ల రూపాయలతో అధునాతన హంగులతో విశాలమైన ఆడిటోరియాన్ని ప్రభుత్వం నిర్మించింది. ఇస్లామిక్ కల్చరల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ కోసం నగరంలో కోకాపేటలో 10 ఎకరాల స్థలాన్ని ప్రభుత్వం కేటాయించింది. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభమవుతాయి. సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలనుకునే 100 మంది మైనార్టీ విద్యార్థులకు ఉన్నత స్థాయి శిక్షణను వారు కోరుకున్న చోట కోరుకున్న విద్యా సంస్థల్లో ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. విదేశాల్లో విద్య అభ్యసించాలనుకునే 1,684 మంది మైనార్టీ విద్యార్థులకు 294 కోట్ల రూపాయలను ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పథకం కింద మంజూరు చేసింది. 54 మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు 1,054 కోట్ల రూపాయలతో పక్కా భవనాల నిర్మాణం జరుగుతోంది. రంజాన్, క్రిస్మస్లను రాష్ట్ర పండుగలుగా ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా 7 లక్షల మంది పేద ముస్లిం క్రైస్తవులకు ప్రభుత్వం నూతన వస్త్రాలను పంపిణీ చేసింది. పండుగల సందర్భంగా సామూహిక విందులు ఏర్పాటు చేసి వారి సంతోషంలో పాలు పంచుకుంటున్నాం. మైనార్టీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా మైనార్టీ వర్గాల వారికి ప్రత్యేకమైన అండదండలు అందిస్తున్నాం. మైనార్టీ యువతకు స్వయం ఉపాధి రుణాల్లో సబ్సిడీని అందజేస్తున్నాం. షాదీ ముబారక్ పథకం కింద 1,75,924 మంది లబ్ధి పొందారు. దీనికి గాను 1,341 కోట్ల రూపాయలను ఇప్పటి వరకు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. మైనార్టీ సంక్షేమానికి 2008 నుంచి 2014 మధ్య కాలంలో 812 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే గడిచిన 6 ఏళ్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 5,712 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది. ఈ బడ్జెట్లో మైనార్టీ సంక్షేమానికి 1,606 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తుంది. और ये तेलंगाना हुकूमत के बजट पर बातचीत के लिए हमारे साथ टीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी जुड़ चुके हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। श्रीधर रेड्डी जी, इस बार का बजट आपको कितना अलग लगता है, चूंकि पूरी दुनिया पर कोरोना की मार है और हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ा है, तो तेलंगाना में जाती तौर पर अगर कहा जाए तो एक तो मरकज से कोई फंड्स नहीं और रियासत को अपने ही फंड्स के जरिए सब कुछ चलाना है। कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? एक प्रोग्रेसिव बजट है जी, और हमारे तेलंगाना राज्य को और द्विगुना आगे लेके जाने का बजट है। आप हर एक सेक्टर में एलोकेशंस देखें तो राइट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू अदर डिपार्टमेंट्स जी, ये पूरा कोरोना के हिट जो है जी पूरे बजट के ऊपर रहते हुए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा बजट अभी आज पेश करने के लिए एक अच्छा बजट प्रेजेंट किया है जी, और हर सेक्टर में एक नई मोड़ लेने के लिए ये बजट काम आता है जी। और अब एग्रीकल्चर 25,000 करोड़, आप हर एक सेक्टर आप देखिए पिछले बजट से देखे तो इस बजट में किन सेक्टर पर खास ध्यान है सरकार का जिसमें फंड्स की बेहद जरूरत है, क्योंकि पिछले बजट में और आज के बजट में हम देखें तो कटौती भी हुई है कई सेक्शंस में। देखिए, तेलंगाना राज्य में एग्रीकल्चर सेक्टर में आज आप एक अच्छे डेवलपमेंट देख रहे हैं जी, और कल्टिवेबल लैंड बढ़ गए हैं, हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट भी बहुत बढ़ गए हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जी उसके लिए भी फंड्स की जरूरत होती है जी, इसलिए पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी फंड्स बढ़ा दिए। और इरिगेशन सेक्टर जो लगातार हम
पिछले 6 साल से जो काम हो रहा सर। है तेलंगाना राज्य में, उसको सपोर्ट देने के लिए 16,930 करोड़ का एलोकेशन दिए हैं। वो छोड़ के जो वेलफेयर, जो पेंशन है तेलंगाना राज्य में, कोरोना का इफेक्ट रहते हुए भी एक महीना भी कोई भी पेंशन ये राज्य ने, ये सरकार ने रोका नहीं है जी। और उसी के लिए आज पेंशन के रूप में 11,720 करोड़ के लिए एलोकेशन हुआ था जी। और पावर सेक्टर, जी। खास करके हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जनता के लिए, उन लोग का जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जी। एसटी प्लान में 21,000 करोड़ और एसटी प्लान में 12,304 करोड़ जी। और हाउसिंग जो प्लान दिया है उसके लिए 11,000 करोड़। मतलब आप हर एक सेक्टर, हेल्थ हो, बीसी वेलफेयर हो, स्कूल एजुकेशन हो, हर सेक्टर में पिछले बजट को देखे तो बहुत इंक्रीमेंट दिए थे। और लेकिन श्रीधर जी, श्रीधर जी, अगर माइनॉरिटीज की बात की जाए तो ऐसे में 2,000 करोड़ 2019 में था, 2,004 करोड़ 2020-21 का हुआ, फिर अब 22 में सीधे हम 1,606 करोड़ पर आ गए, सीधे कटौती हो गई। माइनॉरिटीज बजट में कटौती हुई है। आपको 2020 और 20 में 20 और 21 में आपको 1,518 करोड़ का एलोकेशन था जी। इस बार 88 करोड़ बढ़ा के आपको 1,606 करोड़ का बजट दिए हैं जी। और आप देखे गए तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि 2008 से 14 तक जी, 2008 से 14 तक पूरे माइनॉरिटी वेलफेयर का तब के जो गवर्नमेंट्स है जी, 812 करोड़ की खर्च किए हैं और पिछले 6 साल में तेलंगाना सरकार ने 5,712 करोड़ का खर्च किए हैं जी। और इसमें जो शादी मुबारक थी, लेकिन देखिए 2019-20 के दरमियान जब असेंबली इलेक्शन हुआ था तब 2,000 करोड़ आपने जारी किए, 700 करोड़ जो है खर्च हुआ है, 1,300 करोड़ लाप्स हुआ है। तो मसला यह है गवर्नमेंट जारी तो करती है लेकिन लैप्स बहुत हो जाता है, खर्च कम होता है। सवाल खर्च करने और लैप्स होने पर भी आ रहा है। पिछले साल में कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत कम हुआ होगा जी। मगर मैं एक बार आपसे विनती करता हूं कि 2008 से 14 तक जो अमाउंट खर्च किए थे 812 करोड़, उसको देखे तो 6 साल में, मतलब तब भी 6 साल में मतलब 800, मतलब हर एक साल 100 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं किए माइनॉरिटी वेलफेयर में। ठीक, ये 6 साल में 5,712 करोड़, मतलब हर साल 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। और ये शादी मुबारक श्रीधर रेड्डी जी, एक सवाल ये है, पिछले 3 साल का जब आरटीआई में रिकॉर्ड निकला था तो 45% बजट, 45% बजट रिलीज हुआ और 38% इस्तेमाल हुआ माइनॉरिटीज के लिए। तो क्या ये आपका जो तेलंगाना का बजट है इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी तो असर नहीं है इसका? कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी का असर नहीं है, खाली पिछले साल में जी कोरोना की वजह से 50,000 करोड़ का जो नुकसान गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आना था वो नहीं आया और ऊपर से हम लोगों को खर्च करना पड़ा, सैलरीज हो, पेंशन्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्लीट करना है उसके ऊपर, और जो खास करके कोरोना के ऊपर जो खर्च हुआ है आपका मेडिसिन या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, एडिशनल स्टाफ को रिक्रूटमेंट करना, लॉजिस्टिक्स, और ये सब चीज देखने के लिए ठीक थोड़ा बहुत डाउट बिल्कुल कोरोना में बजट थोड़ा बढ़ गया, सरकार को वो काम करने पड़े जो उनके बजट से बाहर था। बेशक ये बात आपकी मानी जा सकती है, लेकिन सवाल यही है कि माइनॉरिटीज का बजट हमेशा कट हो रहा है, या तो इस्तेमाल कम हो रहा है, लैप्स ज्यादा हो रहा है। इतना ही दीजिए जितना इस्तेमाल हो रहा है, फिर बजट बताया ज्यादा जा रहा है और खर्च कम किया जा रहा है। सवाल यहां है गवर्नमेंट का इंटेंशन समझना है जी। माइनॉरिटी वेलफेयर का जो एलोकेशन हो रहा है जी, गवर्नमेंट एक सही इंटेंशन से जी इन लोगों को ज्यादा सब्सिडी देना, लोन्स देना और स्कूल्स चलाना, स्कूल्स में स्कॉलरशिप्स देना, माइनॉरिटी वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल्स को ज्यादा एलोकेशन देना, ये सब मन में रखते हुए एलोकेशन करते हैं जी। कभी ये लास्ट ईयर जो कोरोना की वजह से थोड़ा कम हुआ है। अब ये भी देखिए शादी मुबारक में पिछले 6 साल में 1,75,926 लोग ठीक जो शादी मुबारक में जो एलिजिबल हुआ है उन लोगों को पैसा दिया गया है। ठीक 1,341 करोड़ ठीक 1,300 कुछ स्कीमों को लेकर, कुछ स्कीमें आपकी बिल्कुल कामयाब है, माइनॉरिटीज के जैसे शादी मुबारक स्कीम हो, रेजिडेंशियल स्कूल हो, ऐसी चीजें हैं जरूर, लेकिन कुछ और भी ऐसी काम है जैसे कर्ज का मामला हो माइनॉरिटीज के लिए, अकलियतों के लिए, वो दरखास्तें अभी भी माइनॉरिटी कमीशन में, ये अकलियती जो है इदारे हैं उसमें पड़ी है।
लोग कर्ज का इंतजार कर रहे हैं सरकार की तरफ से? नहीं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के काम के ऊपर डिपेंड करता है, बट ठीक। जरूर गवर्नमेंट इस बार जो एफिशिएंट ऑफिसर्स है वहां पर जी। उन लोग उसके ऊपर काम करेंगे जरूर। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि कि जो कर्ज के मुंतजिर हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, उनको कर्ज जारी किए जाएं। दूसरी स्कीमें भी जो अकलियतों के लिए बनाई गई हैं उस पर 100% या कम से कम 70 से 80% जो है बजट का इस्तेमाल अकलियतों के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर जी हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में कोरोना के 278 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 59,905 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिससे 278 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 3,02,047 के पार हो चुकी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में 2,265 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 830 अफराद होम क्वारंटीन में है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 35 नए केसेस दर्ज हुए हैं। और तेलंगाना में सरकारी और रेजिडेंशियल स्कूलों में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से हुकूमत ने 8वीं जमात तक के क्लासेस को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा रवां साल 8वीं जमात तक के सालाना इम्तिहानात भी मुनक्किद न करने का फैसला किया। इस सिलसिले में बहुत जल्द सरकारी अहकामात जारी किए जाएंगे। पिछले 3 दिनों के दौरान रियासत भर में 200 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए हुकूमत ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। कल असेंबली में अपने खिताब के दौरान वजीर आला ने कहा कि आइंदा 2-3 दिनों में इस मामले पर कतई फैसला लिया जाएगा। वज़ीर के 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों में 14,34,000 से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके तालाब कट्टे में एक घर पर पुलिस ने छापा मारा। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। इस दौरान पुलिस ने एक मकान से 5 तलवारें और 3 चाकू बरामद किए। साउथ जोन डीसीपी गुज्जाराव भोपाल ने बताया कि इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों गुज़श्ता कई दिनों से राजस्थान से कम कीमत पर तलवार लाकर शहर में फरोख्त कर रहे थे, जो गैर कानूनी है। साउथ जोन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। भवानी नगर पुलिस स्टेशन एरिया में तालाब कट्टा से इतला मिली कि वहाँ पे कुछ लोग चाकू लाए बाहर से। भवानी नगर पुलिस स्टेशन साउथ जोन और टास्क फोर्स की कंबाइंड रेड उस पर हुई। एक आदमी जावेद और सलमान, उनका घर पर रेड हुई और वहाँ से 5 तलवार और 3 चाकू उसके घर से रिकवर किए। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग राजस्थान अजमेर से ये चाकू और तलवार लाए और हमें इन्फॉर्मेशन भी है कि ये कुछ राउडी शीटर्स को यहाँ से सप्लाई करने का है। और ये जो तलवार है ये कुछ शादियों में भी इसमें यूज़ कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ अगर पुलिस की नज़र में आए तो उस पर सख्त सख्त एक्शन ले रहे हैं और राउडीज़ पर भी हम बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं। इसमें 2 लोग सलमान और जावेद और 5 तलवार और 3 चाकू। और जिला निजामाबाद के समाजी खिदमत गुजार सैयद मोहसिन अहमद सदर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया तेलंगाना की समाजी खिदमात का एतराफ़ करते हुए जिनेवा में मौजूद आलमी इदारा यूनिसेफ की जानिब से उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से सरफराज किया गया। रियासती स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास के हाथों सैयद मोहसिन ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल की। सैयद मोहसिन सदर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया तेलंगाना ने की जानिब से समाजी, दिमागी और जिस्मानी माजूरीन व तकालीफ से निमटने में मसरूफ़ अफराद के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान मुस्तहक व गरीब अफराद की इंसानी बुनियाद पर बिला तफरीक मजहब व मिलत खदमात की अंजामदही पर आलमी इदारा यूनिसेफ की जानिब से उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की गई है और ये ज़िले के साथ साथ रियासत तेलंगाना के लिए भी एक एजाज़ है। खास करके हमको इस खिदमत के लिए दिया गया। हम लगातार 2 साल से घुटनों का इलाज जो है फ्री ऑफ कास्ट में जो है अल फुरकान जामा सेंटर पे जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है करा रहे हैं, जिसमें हमसे डॉक्टर सलीम यानी कि जो है मिलकर हमसे ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हम गांव-गांव जाकर शहर जाकर एजुकेशन को जो है बच्चों के अंदर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे समाजी खिदमत ये रहे हैं, जिसको जो है पोचाराम असम्बली स्पीकर तेलंगाना की जानिब से नवाजा गया। पोचाराम साहब की जो है काफ़ी हमको दिली खुशी मुबारकबाद भी जो है मिली और ये कामयाबी मेरी नहीं है, मेरे सारे टीम मेंबर्स की जो है जद्दोजहद है।
मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा दादाशुमार बताते हैं कि आला तालीमी इदारों में अक़लियती तलबा का हिस्सा महज 7.5% है। गुज़श्ता 2-3 दहों में अक़लियती तलबा बिलखसूस मुसलमानों में आला तालीम के हसूल के रुझान में इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमत की जानिब से इस खला को पुर करने की संजीदगी में बतदरीज कमी होती जा रही है। गुज़श्ता 6-7 सालों के अंदर अक़लियती स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद फेलोशिप में कटौती अक़लियती तलबा की आला तालीम से दूरी में इजाफे का अहम सबब है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम स्टूडेंट्स का सिर्फ 7.5% इनरोलमेंट रेट है और ये नंबर्स हमें एक बहुत सीरियस कंडीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां पिछले 20-30 सालों में खुद कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस और बेदारी आई है, वहीं हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस हिस्टोरिक गैप को फिल करने के लिए जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो लगातार कम होता चला गया। खास करके पिछले 6-7 सालों में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स और खास करके मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, उसमें जो कटौती आई है, उसके नंबर्स और बजटरी एलोकेशन को जो कम किया गया है, हम लगातार उस पे प्रोटेस्ट करते रहे हैं और ये पॉइंट आउट करते रहे हैं कि इसकी वजह से एनरोलमेंट रेट गिरेगा और इसका सबूत हम आज अपने सामने देख रहे हैं खुद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेटा की शक्ल में। और इस वक्त बहुत जरूरी है कि स्कॉलरशिप के नंबर्स को दोबारा बढ़ाया जाए और सीरियस तरीके से मुस्लिम्स के अंदर के बैकवर्ड क्लासेस को कैसे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर कुछ पॉलिसी लेवल के इंटरवेंशंस करने की जरूरत है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।